Good morning, children. So, today we are going to discuss the chapter The Raindrops, the first chapter in your English subject, right? So, before uh, starting the chapter The Raindrops, let me ask one question to you. Do you know what is weather? Weather क्या होता है? क्या आपको पता है? Yes, you might have heard this word in Hindi like मौसम. मौसम आपने सुना होगा, right? So what is मौसम actually? मौसम क्या होता है? Like weather. So weather is what? Weather can be hot, weather can be cold, weather can be rainy, right? It could be windy also, right? So weather have different forms, right? So now see, there are certain words given over here, jumbled words are given over here. So what you need to do here, you need to rearrange these letters to find words related to weather. आपको क्या करना है, आपको इसको जम्बल्ड वर्ड से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है जो कि वेदर से रिलेटेड हो, राइट? सो इफ़ यू लुक एट दिस फर्स्ट वन, there are three letters given over here, GFO. So the first word which comes to your mind is, what comes to your mind? Yes, right, it is fog. F-O-G. Fog, right? So fog is a word. Fog means what? Fog you can see in winter seasons, right? Now, next let's come to the second part. Next one. Yes, N-A-I-R. So with this, what can you make a word, a meaningful word that has to be related to weather? So we can make, first let's write A, then A, then E, and then no. So now it has become rain. Yes. Now the third word is, we are provided with four letters, W-O-N-S, right? Now what can you make with these four letters? Now let's try. If I write S in the starting, then N, then O, and at last W. Yes. Now we got snow, right? Snow you can find in the season of winters in Himachal Pradesh or in Srinagar, right? So snow is the word which is related to weather only. Next we have this one, IWND, right? So with this we can do what we can do. See, let's try. Let's write W first, then E, then N, then D. So this has become wind, right? So this we have done. So okay, you can think many more words, you can find out many more words which are related to weather, right? And let's start with our chapter. See, yes, farmer Seth had a large field of wheat. फार्मर यू नो व्हाट इज़ फार्मर? किसान, जो खेती करते हैं उसको हम फार्मर कहते हैं. फार्मर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फार्मर? सेठ. नेम ऑफ द फार्मर इज सेठ. हैड अ लार्ज फील्ड ऑफ व्हीट. उसके पास क्या है? एक बहुत बड़ा खेत है व्हीट का, राइट? गेहूं का. ही वीडेड इट केयरफुली. वीडेड, व्हाट डू यू मीन बाय वीडेड? क्या होता है वीडेड? See, you can see here, if you turn this page, you can see here there are certain words given over here. Weeded. Weeded means removed unwanted wild plants. So weeded का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे फार्मर खेती करता है, जैसे उसने वीट प्लांट किया, वीट के पौधे या वीट के बीज बो दिए, ठीक है? तो जैसे ही छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं वीट के फील्ड में, तो उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो होते हैं, जो वीट नहीं होता, कुछ और ही होते हैं, राइट? तो वीडेड का मतलब ये है कि जो अनवांटेड प्लांट्स है, जो एक्स्ट्रा प्लांट्स ग्रो हो गए हैं, ठीक है, उनको खोद करके बाहर निकालना, वो होता है वीडेड, राइट? सो नाउ दिस फार्मर हैज़ डन वीडेड. इसने वीडेड कर लिया अपनी फील्ड को, यानी इसकी फील्ड में वीट के अलावा जो भी एक्स्ट्रा प्लांट्स थे उसको निकाल कर इसने फेंक दिया. एंड प्रेड फॉर इट टू रेन एवरी डे. और हर दिन वो क्या करता है?
प्रे करता है, किस लिए? फॉर इट टू रेन, कि भाई बारिश हो जाए, राइट? क्यों करता है? ही वॉन्टेड टू सेल हिज व्हीट, वो क्या चाहता है? वॉन्ट टू सेल हिज व्हीट, अपने व्हीट को सेल करना चाहता है। सेल मीन्स बेचना, राइट? सो दैट हिज फैमिली कुड लिव ऑन दैट मनी फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। क्यों बेचना चाहता है? क्योंकि उसकी जो फैमिली है, ताकि इतने पैसे आ जाएं, उन पैसों से उसकी फैमिली के एक्सपेंसेस या खर्चे चल सकें पूरे साल भर के लिए, राइट? हाउएवर, लेकिन फिर भी आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर मेनी मंथ्स ही सो दैट the wheat had started to wither and droop. Now, after working hard, मतलब बहुत मेहनत करने के बावजूद, बहुत महीनों से, फिर भी क्या हुआ? He saw that, उसने देखा, क्या देखा? The wheat had started to, wheat ने क्या करना शुरू कर दिया? Wither, wither means to dry, सूखना, and droop, और सूख करके वो बेंड हो गए, ड्रूप हो गए, झुक गए, right? This was because there had been no rain for a long time. अब ऐसा क्यों हुआ? उसके जो वीट थे वो विदर एंड ड्रूप क्यों हो गए? क्योंकि because there had been no rain for a long time, लंबे टाइम से जो है बारिश नहीं हुई, कोई रेन नहीं हुई, राइट? He began to fear, उसको डर लगने लगा है, फियर हो रहा है उसको। क्या फियर हो रहा है, क्या डर लग रहा है? दैट ऑल हिज हार्ड वर्क वुड बी वेस्टेड, उसको ये डर है कि उसका पूरा हार्ड वर्क, जो उसने मेहनत की, दैट वुड बी वेस्टेड, वो सारी बेकार जाएगी। एंड ही वुड हैव नो व्हीट टू हार्वेस्ट, और ही वुड हैव नो व्हीट, उसके पास कोई व्हीट नहीं होगा हार्वेस्ट करने के लिए। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब क्या है? सी, देयर इज़ अ वर्ड गिवन ओवर हियर, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स टू कट एंड कलेक्ट राइप क्रॉप्स, मतलब जब फसल पक जाती है तो उसको काटते हैं हम, राइट? कट करके उसमें से ग्रेन्स को कलेक्ट करना, वो होता है हार्वेस्ट। तो उसके पास व्हीट ही नहीं होगा तो हार्वेस्ट कहाँ से करेगा, राइट? ही फेल्ट वेरी सैड, राइट? उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही वेंट आउट टू द फील्ड, वो फील्ड पे जाता था। लुकिंग एट द थर्स्टी व्हीट, और जब वो प्यासे गेहूँ को देखता था, एंड प्रेड फॉर इट टू रेन, तो वो जो है प्रे करता था कि भाई बारिश हो जाए, राइट? वन डे, एक दिन क्या हुआ? एज ही स्टूड लुकिंग अप, मतलब खड़ा था, वो ऊपर देख रहा था, एट द स्काई होपफुली, राइट? उसको आशा थी कि शायद बारिश हो जाए। टू लिटिल रेन ड्रॉप्स, दो बारिश की छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स, बूंदे, जिनका नाम क्या था? पिट एंड पैट, सो हिम। यू कैन सी देर आर टू रेन ड्रॉप्स, वन इज पिट एंड अनदर इज पैट, दोनों ने फार्मर को देखा। नाउ पिट सेड, पिट ने क्या कहा? लुक एट द फार्मर, उस फार्मर को देखो। आई फील वेरी सॉरी फॉर हिम, मुझे उसको देखकर बहुत दुख होता है। ही वर्कड सो हार्ड टू ग्रो हिज वीट, उसने बहुत मेहनत की अपने वीट को ग्रो करने के लिए, बड़ा करने के लिए। बट नाउ इट्स ऑल ड्राइंग अप, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब सब कुछ सूख रहा है। आई वॉन्ट टू हेल्प हिम, मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। ये किसने कहा? पिट ने। यस मी टू, हाँ मैं भी। किसने कहा? पैट ने। बट वी आर ओनली टू लिटिल रेन ड्रॉप्स, पर हम तो सिर्फ दो छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स है। वॉट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं? जस्ट द टू ऑफ अस कांट वाटर अ बिग फील्ड, हम दो छोटी छोटी बूंदे तो एक बड़ी सी फील्ड को, फार्म को वाटर नहीं दे सकते, राइट? सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। नाउ in the next class
we will discuss the second part of this chapter, right? Thank you.